Good morning, students. As we have discussed in last class, how we can use DML statements in PL/SQL block. As we have already discussed, while we are working with PL/SQL block, all types of SQL commands cannot be used in a PL/SQL block. PL/SQL block supports only DML commands. It means we can use only insert, update, delete, and select command while working with PL/SQL block. Insert, update, and delete command will be used in the same manner in a PL/SQL block as they are being used at SQL prompt, but select command cannot be used in the same manner in a PL/SQL block. To work with select command, we have to use into clause as we have already discussed in last class. Clear, students? Yes, sir. So now we will discuss. I have told you to read about data independency. Have you studied about data independency? Hello? Hello? Students, have you studied No, about sir. data independency? No, sir. No one. Not a single No, student. sir. Yes, sir. Why? क्यों नहीं पढ़ा बच्चों? बोला था मैंने पढ़ने के लिए, आपको सिंपल 5 मिनट नहीं लगने थे उसमें। मैंने कहा था आपसे डॉक्टर EF कोड रूल्स वाली पीपीटी निकालनी है। उस पीपीटी में 12 रूल्स बताए गए हैं। उसमें 2 रूल हैं, एक है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी और दूसरा है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। सिंपल आपको वो 2 रूल पढ़ने थे। किसी ने भी नहीं पढ़े हैं? बताइए। नो, सर. नो सर। क्यों नहीं पढ़े हैं भाई? क्या करते हो पूरे दिन? बस व्हाट्सएप ग्रुप पे चैटिंग करते रहते हो, हैं? Yes, sir. चलिए समझ लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी मींस if we change the physical location of our data, then we should not change our application program. Basically, data is stored in the database, and the data stored in the database will be accessed by the user with the help of application programs, because every user doesn't know SQL commands. Clear, students? सभी यूजर्स को, एंड यूजर्स Yes, को sir. SQL कमांड्स नहीं आती हैं। तो यूजर्स को डेटाबेस के साथ वर्क करने के लिए, यूजर्स को डेटाबेस से डेटा रिट्रीव कराने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी गो टू ATM मशीन and when we are withdrawing money from the ATM, or whenever we are depositing money in the ATM, or whenever we are changing the PIN code, what we are doing, we are accessing the data from the database. But as you know, we don't require to learn any SQL command to retrieve data from the database while we are working with ATM machine. Clear, students? जब हम ATM Yes, मशीन sir. पे जाते हैं, ATM मशीन में कार्ड इंसर्ट करते हैं, अगर हमें डेटा विड्रॉ कराना है, अगर हमें डेटा डिपॉजिट करना है, अगर हमें बैलेंस इंक्वायरी करनी है, अगर हमें पिन कोड चेंज करना है, तो हमारे पास मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम होता है जिसको कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम। उस प्रोग्राम पे क्लिक करके, मल्टीपल ऑप्शंस पे क्लिक करके हम जो भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। बट internally, what is being happened internally, to perform any operation with the database, SQL commands are being used, but user is not aware of that, of those SQL commands. So what we are doing, we are accessing the data from the database with the help of application program. It means whenever we are required to work with the data available in the database, we will be using 2 things. First one is database, where data will be stored permanently, and second one are application programs. Application programs will be used to access the data from the database. It means जब हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाते हैं तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की कनेक्टिविटी डेटाबेस से कराते हैं। वो डेटाबेस हमारा जिस फिजिकल लोकेशन पर होता है, हम अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम की कनेक्टिविटी उस फिजिकल लोकेशन से कराते हैं। अब लेटर ऑन
अगर हम डेटाबेस की फिजिकल लोकेशन चेंज कर दें तो हमें प्रोग्राम में भी चेंज करना पड़ता है. दिस इज नोन एज फिजिकल डेटा डिपेंडेंसी. बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर EF कोड, physical data dependency must not be there. There must be a physical data independency. Physical data independency means if we change the physical location of our data, then we should not change our application program. Clear, students? Yes, sir. Yes, sir. Second one is logical data independency. What is logical data independency? Logical data independency means if we make any change in our database logically, we should not change our application program. This is logical data independency. Means अगर हम अपने प्रोग्राम में कोई भी लॉजिकल, अगर हम अपने डेटाबेस में कोई भी लॉजिकल चेंज करें तो हमें अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज ना करना पड़े. फॉर एग्जांपल, ये प्रोग्राम देखिएगा आप स्क्रीन पे, आपको एक प्रोग्राम दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स. Yes, sir. लास्ट क्लास में हमने ये प्रोग्राम बनाया था. किस लिए? राइट अ PL SQL ब्लॉक टू गेट एन एम्प्लॉय नंबर. यूजर से एम्प्लॉय नंबर इनपुट कराना है. डिस्प्ले नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नंबर ऑफ दिस एम्प्लॉय. फिर उस एम्प्लॉय का नेम डिस्प्ले कराना है, सैलरी डिस्प्ले करानी है और डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले कराना है. क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. बनाया था हमने लास्ट क्लास में प्रोग्राम. तो इसके लिए सबसे पहले हम डिक्लेयर ब्लॉक स्टार्ट करेंगे. डिक्लेयर ब्लॉक में वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे. एज यू आर सीइंग इन दिस प्रोग्राम, वी हैव टू डिक्लेयर 4 वेरिएबल्स. फर्स्ट वेरिएबल इज फॉर एम्प्लॉय नंबर, सेकंड वन इज फॉर एम्प्लॉय नेम, थर्ड वन इज फॉर एम्प्लॉय सैलरी एंड फोर्थ वन इज फॉर डिपार्टमेंट नंबर. तो जो हमने EN वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये हमने एम्प्लॉय नंबर के लिए डिक्लेयर किया है. तो इस वेरिएबल को हम उसी टाइप का डिक्लेयर करेंगे जिस टाइप का हमारा एम्प्लॉय नंबर फील्ड है इन द EMP टेबल. तो जब हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं, हम सबसे पहले इस प्रोग्राम को बनाने से पहले वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ EMP टेबल. जहां पर भी हमने डेटाबेस बनाया है, हम ओरेकल में जाएंगे, SQL कमांड लाइन पर जाएंगे, वहां पर डिस्क्रिप्शन कमांड चला के अपनी EMP टेबल का स्ट्रक्चर देखेंगे. वहां पे हमने देखा जो हमारा EMP NO फील्ड है वो नंबर टाइप का है, तो हमने EN को भी नंबर टाइप का ले लिया. सेकंड हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है NM फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉय नेम. तो हम देखेंगे टेबल में एम्प्लॉय नेम के लिए ENAME फील्ड है. हमने चेक किया ENAME फील्ड हमारा varchar2 टाइप का है और उसका साइज 20 है. तो हमने यहाँ पर NM वेरिएबल भी ले लिया varchar2 टाइप का और साइज कर दिया 20. सेम इज फॉर SL, सेम इज फॉर DN. क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, चलिए, sir. अब हमने ये प्रोग्राम बना लिया, इस प्रोग्राम को रन कराया. जैसे इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, इट विल आस्क फॉर एम्प्लॉय नंबर. हमने एम्प्लॉय नंबर डाला जो कि टेबल में एग्जिस्ट करता है, तो इसने उस एम्प्लॉय का नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर हमें डिस्प्ले करा दिया. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेटर Yes, ऑन, sir. बाद में कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम डेज, हमने अपनी EMP टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया. मान लीजिए हमने अपनी EMP टेबल का जो हमारा EMP NO फील्ड था उसका टाइप चेंज कर दिया या उसका साइज चेंज कर दिया. जो हमारा ENAME फील्ड था हमने उसका साइज चेंज कर दिया. हमने सैलरी का डेटा टाइप चेंज कर दिया या साइज चेंज कर दिया. और फिर हमने इस प्रोग्राम को रन कराया. इस प्रोग्राम में बिना कोई चेंज करे तो क्या ये प्रोग्राम प्रॉपर्ली वर्क करेगा? No. बताइए स्टूडेंट्स. सर फिर तो प्रोग्राम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर बताइए. अगर हमने टेबल में अब कोई चेंज कर दिया, हमने EN फील्ड का डेटा टाइप चेंज कर दिया या साइज चेंज कर दिया या नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर में से किसी भी फील्ड का डेटा टाइप या साइज अगर हमने चेंज कर दिया, तो ये प्रोग्राम प्रॉपर्ली वर्क करेगा या नहीं करेगा? नो सर. सर नहीं करेगा. दिस विल नॉट वर्क. दिस इज लॉजिकल डेटा डिपेंडेंसी. इसको क्या कहते हैं? Okay. लॉजिकल डेटा Logical. डिपेंडेंसी. Our application program is logically dependent on the database. अगर हम डेटाबेस में कोई भी लॉजिकल चेंज कर रहे हैं तो हमें अपना प्रोग्राम भी चेंज करना पड़ रहा है. क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर. यस सर. अब एक Yes, क्वेश्चन sir. पूछा था, शायद गरिमा ने पूछा था. क्या क्वेश्चन पूछा था गरिमा, बताइए. सर प्रोग्राम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो हमारा डाटा है. प्रोग्राम पे इफेक्ट पड़ेगा ना. प्रोग्राम विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली. प्रोग्राम हमारा प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमारी डेटा टाइप कंपैटिबिलिटी नहीं है. हाँ सब कुछ चेंज हो गया. यस सर. क्लियर स्टूडेंट्स? यानी कि हमें प्रोग्राम में भी चेंज करना पड़ेगा और हमारी लॉजिकल डेटा
डिपेंडेंसी होगी, इंडिपेंडेंसी नहीं होगी। लेकिन डॉक्टर EF कोड कहते हैं हम किसी भी DBMS डेटाबेस पैकेज को RDBMS तभी कह सकते हैं जब उसमें लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, यानी कि डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। मींस हमने ये जो प्रोग्राम बनाया है, दिस प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन EMP टेबल, लेकिन फिर भी इफ वी मेक एनी चेंज इन EMP टेबल वी शुड नॉट चेंज आवर प्रोग्राम। अगर हम EMP टेबल में कोई चेंज करें तो हमें अपने प्रोग्राम में कोई चेंज ना करना पड़े। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. दैट इज नोन एज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी, उसे कहते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। और बहुत सारे डेटाबेस पैकेज इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, बट Oracle सपोर्ट्स दिस रूल। हाउ? उसके लिए हम डेटा टाइप यूज करते हैं। हमने PL/SQL डेटा टाइप्स पढ़े थे, तो हमने PL/SQL डेटा टाइप्स में पढ़ा था PL/SQL सपोर्ट्स ऑल द डेटा टाइप्स सपोर्टेड बाय Oracle as well as supports 3 additional data types। उसमें एक था boolean, उसमें एक था percentile type और उसमें एक था percentile row type। boolean we have already discussed, Yes, sir. to store logical values true and false। now we will discuss percentile type। percentile type is used to declare a variable of a particular field type। इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं, इस एग्जांपल में हमने en किस टाइप का डिक्लेयर किया है? नंबर टाइप का। क्लियर? हमने इसे नंबर टाइप का क्यों डिक्लेयर किया है? क्योंकि इस वेरिएबल में हमें EMP NO फील्ड की वैल्यू स्टोर करानी है और EMP टेबल में EMP NO फील्ड नंबर टाइप का है। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. अगर हम इस वेरिएबल को नंबर टाइप का डिक्लेयर ना करके, अगर हम इस वेरिएबल को EMP NO टाइप का डिक्लेयर कर दें, हम कहें ये उस टाइप का डिक्लेयर हो जाए जिस टाइप का EMP NO है, हम ये ना बताएं कि नंबर टाइप का डिक्लेयर हो, हम ये ना बताएं कि वेरकर टाइप का डिक्लेयर हो, हम ये ना बताएं कि डेट टाइप का डिक्लेयर हो, हम कहें दिस वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड ऑफ द सेम टाइप ऑफ EMP NO फील्ड ऑफ EMP टेबल। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर अगर हम टेबल में कोई भी चेंज करेंगे तो इस वेरिएबल का टाइप अपने आप चेंज हो जाएगा, हमें अपने प्रोग्राम को चेंज नहीं करना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? Okay, sir. For Yes, that sir. purpose we have to work with percentile type data type। एग्जांपल देखेंगे, वेरिएबल नेम, जिस नेम से आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, देन वेरिएबल नेम के बाद टेबल नेम डॉट फील्ड नेम परसेंटाइल टाइप। तो अब हमने यहां पर आप देख रहे हैं वेरिएबल नेम के लिए कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं दिया, हमने कहा ये वेरिएबल ऑटोमेटिकली उस टाइप का डिक्लेयर हो जाए जिस टाइप का ये फील्ड है इस टेबल में। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. बना के देखते हैं। देखिए प्रोग्राम, न्यू शेयर, कमांड लाइन। यहां पे हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसका नाम हमने रखा था डिस्प EMP। उसी प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं, ये जो हमने लास्ट क्लास में प्रोग्राम बनाया था। क्लियर, विजिबल है स्टूडेंट्स? No, sir. Yes, sir. प्रोग्राम इज विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. चलिए यहां पर आप देख रहे हैं हमने भाई 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं। अब हम EN को नंबर टाइप का ना लेके हमने कहा EMP डॉट EMP NO टेबल नेम डॉट फील्ड नेम परसेंटाइल टाइप। सेम नेम को varchar 30 ना लेके वी विल से EMP डॉट ename परसेंटाइल टाइप। सेम SL को नंबर टाइप का ना लेके EMP डॉट SAL परसेंटाइल टाइप। सेम DN को नंबर टाइप का ना लेके वी विल से EMP डॉट DEPTNO परसेंटाइल टाइप। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. अब इसको एग्जिट कर देते हैं, सेव कर देते हैं, वापस कमांड लाइन पे चलते हैं, प्रोग्राम रन कराते हैं @disp EMP। एंटर वैल्यू फॉर EMP NO हमने कहा 7839। तो देखिए आउटपुट आ गया, दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि सेट सर्वर आउटपुट कमांड ऑन नहीं है। नहीं है।
दोबारा से रन करा देते हैं। दिस पीएनपी एंटर वैल्यू फॉर एम्प्लॉय नंबर, हमने कहा 7839। तो देखिए जो 7839 एम्प्लॉय हैं उनका नेम आ गया, एम्प्लॉय सैलरी आ गई और डिपार्टमेंट नंबर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर, यस सर। तो ये हमने एस्टेब्लिश करी लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। To establish logical data independency, we are required to declare all the variables of the same type of the field as they are in the table. To do so, we have to work with the data type percentile type. Clear students? समझ आ गया स्टूडेंट्स? यस सर। चलिए अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये जो एग्जाम्पल हमने बनाया है, इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया है? वी आर गेटिंग एन एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम द यूजर एंड वी आर डिस्प्लेइंग ओनली नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नंबर ऑफ दैट एम्प्लॉय। Suppose we are not required to display only name, salary and department number of the employee. Suppose we are required to display all the details of an employee. हमें केवल नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर ही डिस्प्ले नहीं कराना है। सपोज हमें सारी डिटेल्स डिस्प्ले करानी है। क्या क्या डिटेल्स थी हमारी टेबल में? हमारी टेबल में था एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर, हायर डेट, एमजीआर नंबर, सैलरी, कमीशन एंड जॉब। क्लियर? ये डिटेल्स थी हमारी टेबल में, याद है सबको? यस सर। तो हमें ये सारी डिटेल डिस्प्ले करानी है। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर हमें ये सारी डिटेल्स डिस्प्ले करानी है तो इस प्रोग्राम में हमें कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे? जितनी फील्ड है सर वैसे तो हर फील्ड के लिए एक एक करना पड़ेगा। हर फील्ड के लिए एक एक करना पड़ेगा, यानी कि अगर हमारी टेबल में 10 फील्ड्स हैं तो हमें कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे? 10 वेरिएबल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। 10 वेरिएबल्स के नाम ध्यान रखना, 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर करना, फिर कोडिंग में बार बार उनका नाम चेंज करना तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, प्रोग्राम बनाने में टाइम ज्यादा लगेगा। Yes sir. It will be more convenient if we are able to store the value of all the fields in single variable. Yes, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हम सारे वेरिएबल्स की, सारे फील्ड्स की वैल्यू एक ही वेरिएबल में स्टोर करा पाए तो वो ज्यादा सिंपल होगा, ज्यादा कन्वीनियंट होगा। Yes sir. Yes sir. Same as which feature of C language? array. No. So structure. Structure. Exactly. Yes sir. Same as structure of C language. Array में तो हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, बट ऑल ऑफ द वैल्यूज विल बी ऑफ द सेम टाइप। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर करानी है। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes sir. Yes sir. In DBMS term, we can say that we can declare a variable which can contain the value of one record. अभी तक तो हम ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे जिस एक वेरिएबल के अंदर हम एक फील्ड की वैल्यू स्टोर करा सकते थे। नाउ वी वांट टू डिक्लेयर अ वेरिएबल व्हिच कैन कंटेन द वैल्यू ऑफ वन कंप्लीट रिकॉर्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes sir. तो अब हमें ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसमें हम एक वेरिएबल के अंदर पूरे रिकॉर्ड की वैल्यू स्टोर करा सकें। एंड आर रिकॉर्ड इज आल्सो नोन एज अ रो। डीबीएमएस में रिकॉर्ड का दूसरा नाम क्या होता है? रो। तो उसके लिए हमारे पास अनदर डेटा टाइप होता है परसेंटाइल रो टाइप। अभी हमने डिस्कस किया परसेंटाइल टाइप, नेक्स्ट वन इज परसेंटाइल रो टाइप। This data type is used to declare a variable of a record type that can contain the value of one record. अगर आपको कोई ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिस वेरिएबल के अंदर आप पूरे एक रिकॉर्ड की वैल्यू स्टोर करा सकें, then you can declare a variable of percentile row type. Syntax will be variable name space table name percentile row type. Clear students? Yes sir. फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ई स्पेस किस टाइप का? एम्परसेंड ईएमपी परसेंटाइल रो टाइप, यानी कि ईएमपी टेबल के रिकॉर्ड टाइप का। इसका मतलब है नाउ इन दिस वेरिएबल ई वी कैन स्टोर अ कंप्लीट रिकॉर्ड फ्रॉम ईएमपी टेबल। अब हम इस वेरिएबल ई के अंदर ईएमपी टेबल का कंप्लीट रिकॉर्ड स्टोर करा सकते हैं।
कंप्लीट रिकॉर्ड ई में स्टोर होने के बाद हम उस ई के हर फील्ड की वैल्यू को अलग अलग कैसे रेफर करेंगे? फिर ई के हर फील्ड की वैल्यू को अलग अलग रेफर करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा ई डॉट फील्ड नेम। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा अगर Yes, हमें sir. ईएमपीएनओ चाहिए तो हम कहेंगे ई डॉट ईएमपीएनओ, अगर हमें नेम चाहिए तो हम कहेंगे ई डॉट नेम, अगर हमें सैलरी चाहिए तो हम कहेंगे ई डॉट सेल एंड सो ऑन। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। बनाते हैं एक प्रोग्राम, यही वाला प्रोग्राम जो अभी हमने बनाया था उसको हम चेंज कर देते हैं। अभी हम उस प्रोग्राम की हेल्प से केवल डिस्प्ले करा रहे हैं नेम एंड सैलरी। अब हम उससे सारी डिटेल डिस्प्ले कराते हैं। तो सारी डिटेल डिस्प्ले करानी है तो हमने कहा किस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लें? सर परसेंटाइल रो टाइप। परसेंटाइल रो टाइप। तो हमने कहा ई स्पेस ईएमपी परसेंटाइल रो टाइप। एक एम्प्लॉय नंबर इनपुट कराना है तो एम्प्लॉय नंबर के लिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया एम्प्लॉय नंबर टाइप का। फिर हमें पूरा रिकॉर्ड चाहिए तो पूरे रिकॉर्ड के लिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया परसेंटाइल रो टाइप का। अब हमने एम्प्लॉय नंबर इनपुट कराया en कॉलन इक्वल टू एम्परसेंड empno। अब हमें सभी फील्ड्स की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? एस्ट्रिक इनटू टेबल नेम, टेबल नेम में हम देंगे इनटू वेरिएबल नेम में हम देंगे ई फ्रॉम ईएमपी वेयर empno इक्वल टू en। इससे हमारा डेटा जो भी empno हम डालेंगे उस empno टेबल में जिस भी रिकॉर्ड से मैच करता है दैट रिकॉर्ड विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल ई। अब हम उस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर हमें एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले कराना है तो हम कहेंगे ई डॉट ई नेम, अगर हमें सैलरी डिस्प्ले करानी है तो हम कहेंगे ई डॉट एसएल, अगर हमें डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले कराना है तो हम कहेंगे ई डॉट डीपीटीएनओ, अगर हमें और कोई वैल्यू डिस्प्ले करानी है मान लीजिए हमने कहा जॉब एम्प्लॉय डेजिग्नेशन तो हम कहेंगे ई डॉट में जॉब। क्लियर स्टूडेंट्स? सर हाँ बोलिए। सर हाँ बताइए। सर सर फर्स्ट नेम नेम में पे ई डॉट ई नेम आएगा। हाँ ई डॉट ई नेम आएगा, ई डॉट ई नेम आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। सेव कर लेते हैं, एग्जिट कर लेते हैं, वापस यस सर। कमांड लाइन पे चलते हैं, प्रोग्राम रन कराते हैं। @disp emp वैल्यू फॉर एम्प्लॉय नंबर। तो आप देखिए एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले हो गया, एम्प्लॉय सैलरी डिस्प्ले हो गई, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले हो गया, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन डिस्प्ले हो गई। इन दिस वे only with the help of single variable we can access a complete record. Clear Yes, students? Yes, sir. Yes, sir. So in this way we can establish logical data independency between our program and the database. So this was the about using SQL in PL SQL block. Clear students? Yes, sir. Now you can work with any DML command, insert, update, delete or select command in your PL SQL block. Clear? Yes, sir. But so far, what is the limitation of using select command in PL SQL block? क्या आप किसी भी select command को PL SQL block में यूज कर सकते हैं या अभी तक हमने जितना पढ़ा है according to that we have some limitation of using select command within a PL SQL block? बताइए स्टूडेंट्स। सर मल्टीपल रो डेटा नहीं अटैच करें। Exactly, बिल्कुल सही बताया। We can work only with those select commands which returns exactly one row. अभी तक हम केवल वही select command PL SQL block में यूज कर सकते हैं जो exactly one row रिटर्न करती हैं। If we are using such select command which returns no row, this program will generate an error. Or if we are using such select command which returns multiple rows, then our program will generate an error. Clear students? Yes, sir. Now we will be learning how we can work with those select commands which returns multiple rows or which returns any number of rows. जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, for that purpose we have to work with
cursors. Clear students? Yes, sir. अगर आपको ऐसी सेलेक्ट कमांड के साथ वर्क करना है जो चाहे तो कोई भी रो रिटर्न ना करे, चाहे वन रो रिटर्न करे, चाहे मोर देन वन रो रिटर्न करे, then we have to work with cursors. Today we will be learning what are cursors. Oracle uses work areas called private SQL areas to execute SQL statements and store information. As we have already discussed in last class, whenever we issue any SQL statement, Oracle uses private work area or work area to process that SQL statement and store the information, the output of our SQL statement in that area. क्लियर स्टूडेंट? डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में. जब भी हम Oracle में कोई भी SQL Yes, स्टेटमेंट sir. देते हैं, Oracle उस SQL स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए वर्क एरिया यूज करती है और हमारे उस SQL स्टेटमेंट का आउटपुट उस वर्क एरिया में स्टोर करके रखती है. क्लियर स्टूडेंट्स? अब लेकिन वो जो वर्क Yes, एरिया sir. है, वो वर्क एरिया Oracle ने बनाया है, हमें उस वर्क एरिया का नाम नहीं पता है, हमें उस वर्क एरिया का एड्रेस नहीं पता है, तो हम उस वर्क एरिया को एक्सेस नहीं कर सकते हैं. If you want to access those work areas, then you have to work with cursors. अगर आप उस वर्क एरिया को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप कर्सर की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं. A cursor is a PL/SQL construct. इसका मतलब है कर्सर को हम केवल PL/SQL के अंदर ही यूज कर सकते हैं, PL/SQL के बाहर यूज नहीं कर सकते हैं. That allows you to name these work areas and to access their stored information. Clear students? समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. जब भी हम Oracle में कोई भी SQL स्टेटमेंट चलाते हैं तो Oracle उस SQL स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए वर्क एरिया यूज करती है. अगर आप उस वर्क एरिया को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको cursors यूज करने पड़ेंगे. This is the definition of a cursor. A cursor is a PL/SQL construct that allows you to name these work areas and to access their stored information. As we have already discussed in last class, there are two types of cursors: implicit cursors and explicit cursor. As the name represent, implicit cursors are the cursors which are declared by PL/SQL implicitly for all DML statements and for single row queries. अगर आप PL/SQL ब्लॉक में कोई भी DML स्टेटमेंट, इंसर्ट, अपडेट या डिलीट स्टेटमेंट चलाते हैं तो उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए PL/SQL ब्लॉक अपने आप से एक कर्सर बनाता है. अपने आप बनाता है इसलिए उस कर्सर को कहते हैं इम्प्लिसिट कर्सर. अगर आपने अपने PL/SQL ब्लॉक में कोई भी ऐसी सेलेक्ट कमांड दी है जो केवल सिंगल रो रिटर्न करती है तो और PL/SQL उस सिंगल रो क्वेरी को प्रोसेस करने के लिए एक वर्क एरिया बनाता है, एक कर्सर बनाता है जिसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कर्सर. क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. अब उस इम्प्लिसिट Yes, कर्सर sir. से हम इंफॉर्मेशन कैसे एक्सेस करेंगे? To access information from the implicit cursors, we have to work with attributes of implicit cursors. इम्प्लिसिट कर्सर से इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए हमें इम्प्लिसिट कर्सर के एट्रीब्यूट्स यूज करने पड़ते हैं. बेसिकली देयर आर 3 एट्रीब्यूट्स प्रोवाइडेड बाय इम्प्लिसिट कर्सर्स. फर्स्ट वन इज SQL परसेंटाइल रो काउंट. मान लीजिए PL/SQL ब्लॉक के अंदर आपने इंसर्ट, अपडेट या डिलीट कमांड चलाई. अगर आप अपडेट कमांड चला रहे हैं और या अगर आप डिलीट कमांड चला रहे हैं तो आपकी एक रो भी अपडेट हो सकती है, एक रो भी डिलीट हो सकती है और मल्टीपल रोज भी डिलीट हो सकती हैं. ये डिपेंड करेगा आपकी कमांड पे. अगर आपने अपनी कमांड में वेयर कंडीशन के साथ ऐसी कंडीशन दी है जो मल्टीपल रोज को सेटिस्फाई करती है तो मल्टीपल रोज अपडेट होंगी. अगर आपने ऐसी कंडीशन दी है जो सिंगल रो को रिफ्लेक्ट करती है तो सिंगल रो अपडेट होगी. अगर आपने ऐसी कंडीशन दी है जिससे कोई भी रो सेटिस्फाई नहीं होती है तो 0 रोज अपडेट होंगी. क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये आपको पता करना है कितनी रो अपडेट हुई हैं, तो आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे? SQL परसेंटाइल रो काउंट. मैंने आपको यूज करके दिखाया था लास्ट क्लास में. Yes, sir. याद है स्टूडेंट, जब हमने एक PL/SQL ब्लॉक बनाया था टू गेट एन एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम द यूजर, डिलीट डिटेल्स ऑफ दिस एम्प्लॉय.
या हमने एक प्रोग्राम बनाया था टू गेट अ डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम द यूजर, डिलीट ऑल द एम्प्लॉइज वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो वहां पर हम पीएल एसक्यूएल ब्लॉक Yes, के sir. अंदर कमांड, पहले डिपार्टमेंट नंबर इनपुट कराएंगे, डिपार्टमेंट नंबर इनपुट कराने के बाद कमांड चलाएंगे डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर डीईपीटीएनओ इक्वल टू जो भी यूजर ने डिपार्टमेंट नंबर डाला है। जब इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे, ये आपसे डिपार्टमेंट नंबर पूछेगा, आप डिपार्टमेंट नंबर डालेंगे, डिपार्टमेंट नंबर डालने के बाद मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा पीएल एसक्यूएल प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। देखा था आप लोगों ने लास्ट क्लास में? Yes, sir. बना के दिखाऊं दोबारा से, याद है लास्ट क्लास का एग्जांपल? सर बना दीजिए। बना दीजिए, चलिए मैं आपको बना के जिसमें दिखाता हूँ। जिसमें सर एक कंडीशन लगाई थी। हाँ हाँ, मैं बना के दिखा देता हूं दोबारा से, कोई बात नहीं। ईडी स्पेस डेल ई, डेल ईएमपी का मतलब डेल एम्प्लॉय डॉट एसक्यूएल। समझ लीजिए पहले प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम है गेट अ डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम द यूजर, डिलीट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले हमने डिक्लेयर सेक्शन लिया, डिपार्टमेंट नंबर इनपुट कराना है, डिपार्टमेंट नंबर के लिए हमने फील्ड ले लिया डीएन, किस टाइप का, ईएमपी डॉट डीईपीटीएनओ परसेंटाइल टाइप। क्लियर? केवल एक ही वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, बिगिन, डिपार्टमेंट नंबर इनपुट कराएंगे डीएन कॉलन इक्वल टू एम्परसेंड डीईपीटीएनओ, डिपार्टमेंट नंबर इनपुट करा लिया। अब हमें डिलीट करना है, हमने कहा डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर डीईपीटीएनओ इक्वल टू डीएन, और कुछ नहीं कराना है, एंड स्लैश। देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले देख लेते हैं हमारी टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो हमने कमांड चलाई सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी। सही से नहीं दिखाई दे रहा है आउटपुट, लाइन साइज सेट कर देते हैं, स्पेस आ गया लाइन साइज में, पेज साइज सेट कर देते हैं, स्क्रीन क्लियर करा लेते हैं। अब कमांड प्रोग्राम रन कराते हैं @del e एंटर। पूछ रहा है एंटर वैल्यू फॉर डिपार्टमेंट नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। हमने Yes, डाला sir. डिपार्टमेंट नंबर 10, या मान लीजिए हमने ऐसा डिपार्टमेंट डाला जो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, 58, एंटर। तो देखिए कोई मैसेज नहीं आया, सिंपल आउटपुट लिखा हुआ रहा है Yes, sir. पीएल एसक्यूएल प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। Yes, sir. तो क्या बता सकते हैं हाउ मेनी रिकॉर्ड्स हैव बीन डिलीटेड? नहीं बता Sir, सकते। 0. यूजर को नहीं, हमें पता है टेबल का स्ट्रक्चर। अगर हमें टेबल का स्ट्रक्चर ना पता हो, अगर हमें ना पता हो टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, अगर हमें ना पता हो टेबल में क्या डेटा है, तो हमें कैसे पता चलेगा डेटा डिलीट हुआ या नहीं हुआ? क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, ये sir. सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है? उस वर्क एरिया के पास जो वर्क एरिया और एक पीएल एसक्यूएल ब्लॉक ने डिलीट कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया है। क्लियर? तो अगर हमें ये पता करना है कितने रिकॉर्ड्स डिलीट Yes, हुए, sir. रिकॉर्ड्स डिलीट हुए या नहीं हुए, तो हमें उस वर्क एरिया में काम करना पड़ेगा, हमें उस वर्क एरिया को एक्सेस करना पड़ेगा। अब वर्क एरिया 2 टाइप्स के होते हैं, इम्प्लिसिट कर्सर और एक्सप्लिसिट कर्सर। यहां पर वर्क एरिया कौन सी कमांड से बना है? डिलीट कमांड से बना है। इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कमांड से जो वर्क एरिया बनता है, उस वर्क एरिया को एक्सेस करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है इम्प्लिसिट कर्सर। अगर हम इस प्रोग्राम में इम्प्लिसिट कर्सर यूज कर लें तो हम उस वर्क एरिया से पता लगा सकते हैं रिकॉर्ड्स डिलीट हुए हैं या नहीं हुए हैं, अगर हुए हैं तो कितने रिकॉर्ड डिलीट हुए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसलिए अब हम उस प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करते हैं। अभी मैं शेयर चेंज कर रहा हूं। देखिए ये जो कमांड रिकॉर्ड डिलीट करेगी वो इंफॉर्मेशन इम्प्लिसिट कर्सर पे चली जाएगी। अब हम इम्प्लिसिट कर्सर से पता लगा लें इस कमांड से कोई रो इफेक्ट हुई है या नहीं हुई है। ये पता लगाने के लिए इम्प्लिसिट कर्सर का एट्रीब्यूट होता है एसक्यूएल परसेंटाइल फाउंड।
आपने जो इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड चलाई है उन कमांड से कोई भी रो अफेक्ट हुई है या नहीं हुई है, ये पता लगाने के लिए इम्प्लिसिट कर्सर एट्रीब्यूट होता है SQL परसेंटाइल फाउंड. दिस एट्रीब्यूट विल रिटर्न ट्रू if any row has been affected, otherwise it returns false if no row has been affected. तो हम यहाँ पे चेक करा लें, if SQL percentile found equal to true, then इसका मतलब रो अफेक्ट हुई है. रो अफेक्ट हुई है तो प्रिंट करा लें dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन. या तो हम सिंपली प्रिंट करा सकते हैं रिकॉर्ड्स डिलीटेड. हम चाहते हैं लिखा हुआ आ जाए कितने रो डिलीट हुए हैं, तो उसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट होता है. उसके लिए हम दूसरा एट्रीब्यूट यूज करते हैं. उस एट्रीब्यूट का नाम होता है SQL परसेंटाइल रो काउंट. ये हमें बता देगा कितनी रो अफेक्ट हुई हैं. तो लिखा हुआ आ जाएगा रिकॉर्ड्स रिलेटेड, उसके आगे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं. एल्स का मतलब है SQL परसेंटाइल फाउंड की वैल्यू ट्रू नहीं है. इसका मतलब है कमांड से हमारा कोई भी रिकॉर्ड अफेक्ट नहीं हुआ है. कमांड से अगर कोई भी रो अफेक्ट नहीं हुआ है तो हम डिस्प्ले करा लें जो भी मैसेज आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं. से हमने डिस्प्ले करा लिया इनवैलिड डिपार्टमेंट नंबर. डिपार्टमेंट नंबर वैलिड नहीं है.